Hi guys, welcome to PW Only IS. My name is Shekhar and I am the faculty of sociology at PW Only IS, and today I have brought this video for you guys to introduce you guys to our upcoming batch which starts on 18th of July 2024, and this batch will be available for those guys who want to prepare for 2025 civil services examination conducted by UPSC. Apart from that, we have decided that it is an idea that we want that you guys should be acquainted of how to prepare sociology optional in general. आपको एक आइडिया मिलना चाहिए कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल है क्या, कैसा है और उसको अप्रोच कैसे करें. सो दिस इज गोइंग टू बी अ लेक्चर अबाउट the approach as well, and then I'll introduce you the syllabus which is prescribed by UPSC for civil services examination, the syllabus of sociology optional. Now we all know that optionals are to be picked as one of the electives which students select for mains examination, right? It is subjective. You've got two papers of an optional subject, each carrying 250 marks. So we'll be looking at all of that, and then we'll conclude the lecture, and by the time there is you end this lecture, I can assure you guys that आपको एक आइडिया लग जाएगा about how to approach sociology optional, और sociology as a subject जो यूपीएससी ने आपको उसका सिलेबस डिस्क्राइब किया है, उसका नेचर क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ने हैं, एंड बुक लिस्ट, इन सब चीजों से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में होंगे, all of that will get answered. So let us begin. So before I proceed, I would just introduce myself formally. So this is me, Ravi Shekhar. I am the faculty of sociology optional over here. I got this fortunate opportunity to associate with PW Only IS, and through this medium I am able to reach you guys, and my intention is कि जो भी सिंसियरली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको मैं मेंटर करूं और आपके गोल को अचीव करने में मैं आपकी सहायता कर सकूं. सो द आइडिया ऑफ आवर सोशियोलॉजी बैच इन जनरल इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट यू गाइस कि कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए आपका ऑप्शनल. दूसरा हमारा आइडिया है कि आप में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अप्लाइड आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस, अप्लाइड क्वेश्चंस को एफिशिएंटली अटेंड करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत जरूरत पड़ेगी. तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको क्लास में बिल्ड हो जाए, समझने के लिए मैं बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स आपको देता हूं. उन एग्जांपल्स के थ्रू आपका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा आसान हो जाता है, एंड देन आपका एक मटेरियल बन जाए, एक कंटेंट डेवलपमेंट हो जाए, जिसको आप कंसोलिडेट करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके यूपीएससी ऑप्शन के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे. सो about me, I have done BTech in computer science, B in computer science. Then I worked in IT for 4-5 years. Then I had come to Delhi and I wanted to prepare for civil services examination. As an aspirant, when I had picked sociology optional, I'll be very honest to you guys. When I picked this optional, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, मुझे इस सब्जेक्ट में इन जनरल इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और मैं जब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिखा तो मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल में काफी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाया था. However, due to some unfortunate circumstances, मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कुछ अंकों से क्लियर नहीं कर पाया. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को गाइड करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, और पिछले 7 सालों से मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिवली गाइड कर रहा हूं. और मतलब मुझे काफी गर्वानुभूत एहसास होता है in accepting the fact that I have successfully mentored many students, and some of my students have successfully cleared this examination and they have gotten rank. Although I have just been a mentor, a facilitator, it is they who are to be credited for their ranks, right? तो मैं आपका वो साथी, मैं आपका वो सारथी बनूंगा ताकि मैं आपकी हैंड होल्डिंग कर सकूं, and I should be able to enable you to cross the bridge so that you guys are able to see your name in the rank list, in the merit list जो कि यूपीएससी पब्लिश करती है. तो इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे कोर्स शुरू करते हैं. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम आल्सो परसुइंग एमए इन सोशियोलॉजी एट आंध्र यूनिवर्सिटी. तो मुझे इन जनरल सोशियोलॉजी की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो गई है. हालांकि आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो अगर, तो आपको मास्टर्स या पीएचडी लेवल की सोशियोलॉजी की जरूरत नहीं है. अगर ऐसा होता तो यूपीएससी ने कंपल्सरीली आपके लिए एकेडमिक डिग्री एक क्राइटेरिया रखा होता. यूपीएससी को चाहिए कि आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो
और वेल एजुकेटेड पर्सन हो, और अगर आप सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करते हैं तो यू वुड बी सफिशिएंट इनफ इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात करूं तो एक रियलिटी ये भी है कि 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल में रैंक लाते हैं वो जनरली नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो अगर आप किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, या फिर आप सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज के किसी और या कॉमर्स ऐसी स्ट्रीम से भी हो, तो भी मैं आपको एक अश्योरेंस देना चाहता हूं, क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सोसाइटी को पढ़ती है, तो आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ने में ज्यादा दुविधा नहीं होगी। तो बिफोर आई प्रोसीड, मैं आपको एक बार वही बताना चाहता हूं कि आज हम लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल से एसोसिएटेड अप्रोच को देखेंगे और उसके बाद सिलेबस डिस्कस करेंगे। नाउ सोशियोलॉजी क्या है, मैं आपको वो ब्रीफली एक बार इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं। सो सोशियोलॉजी इज कॉल्ड साइंस ऑफ सोसाइटी, है ना। सोशियोलॉजी टर्म जो है इसके अंदर दो रूट वर्ड है, एक है सोशियस और दूसरा है लोगोस, है ना। सोशियस का मतलब कंपेनियन, फ्रेंड, कंपेनियनशिप भी कह सकते हैं या फ्रेंडशिप, राइट। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ या फिर साइंस। ये टर्म सोशियोलॉजी जो है, ऑगस्ट कॉन्ट, इन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। इन्होंने 1839 में कॉइन किया था इस टर्म सोशियोलॉजी को, और जब इन्होंने सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एनविजन किया था, जब तो इनका उम्मीद क्या था कि सोशियोलॉजी, क्योंकि उस वक्त में यूरोपियन सोसाइटी में काफी तब्दीलियां आ रही थी, काफी परिवर्तन आ रहा था, तो जैसे नेचुरल साइंसेस फिजिकल वर्ल्ड को, नेचुरल वर्ल्ड को पढ़ते हैं, तो इनका उम्मीद था उसी तरह बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे, बहुत सारे लॉज होते होंगे जो हमारे सोसाइटी को, सोशल वर्ल्ड को गवर्न करते हैं कि कैसे सोसाइटी बढ़ती है, कैसे सोसाइटी में परिवर्तन आता है ना, क्या क्या चीज कंट्रीब्यूट करती है कि सोसाइटी में ऑर्डर बना रहे, सोसाइटी स्टेबली चलता रहे। तो इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी डिसिप्लिन को एनविजन किया गया, और इनका उम्मीद था कि जैसे नेचुरल साइंसेस साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके एम्पिरिकल तरीके से, मतलब फैक्ट बेस्ड स्टडी करती है, उसी प्रकार से सोशियोलॉजी फैक्ट बेस्ड स्टडी करेगी। किसकी? सोसाइटी की, ताकि हम सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से समझ सके, सोसाइटी के नियमों को समझ सके, और हम ये जान सकें कि कैसी चीजें सोसाइटी में ऑर्डर, इंटीग्रेशन, स्टेबिलिटी, इनको मेंटेन रखती हैं, और कौन सारे फैक्टर्स जो है सोसाइटी में परिवर्तन के पीछे, बदलाव के पीछे, चेंज के पीछे, जिसको हम बोलते हैं सोशल चेंज, है ना, कौन सारे फैक्टर्स सोसाइटी में सोशल चेंज कॉज करते हैं, राइट। तो हमारा जो ये बैच आने वाला है, मैं ब्रीफली आपको अपने बैच के बारे में भी बता देता हूं। हमारा जो ये बैच आने वाला है, ये 18th ऑफ जुलाई से शुरू हो रहा है, 18th ऑफ जुलाई 2024 को। इसके कुछ फीचर्स आप जान ले। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेंगी, इसमें आपको लाइव टीचिंग की जाएगी। तो मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा। सोशियोलॉजी से बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाएगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जब मैं आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल बता दूंगा, उसका सिलेबस समझा दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस जहां से शुरू होता है, दैट इज कैसे सोशियोलॉजी इमर्ज होता है ड्यू टू सर्टेन हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स जो कि यूरोपियन सोसाइटी में बनते हैं। मतलब यूरोपियन सोसाइटी में कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि रेनेसा, जैसे कि एनलाइटनमेंट, जैसे कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, रिलीजियस रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कमर्शियल रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके कारण एक अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस आते हैं यूरोपियन सोसाइटी में, और हम मिडिल एजेस से ट्रांजिशन कर जाते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। तो उस मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स को पढ़ने के लिए, जब ये चेंज आया था तो सोसाइटी में जो डिसरप्शन हो गया था उसको समझने के लिए, और वापस सोसाइटी में ऑर्डर कैसे एस्टैब्लिश होगा, इन सब चीजों को समझने के लिए सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्ज होती है। तो हमारी यूपीएससी की सिलेबस एग्जैक्टली वहां से शुरू होती है। हालांकि उसको भी समझने के लिए, जैसे कि मैं आपको अगर इंट्रोड्यूस करूं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल, सोशल ग्रुप, सोशल स्ट्रक्चर, पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस।
तो अब इसमें बहुत सारे टर्म्स आ गए, जैसे कि मैंने आपको बोला सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी। या फिर मैंने कुछ टर्म्स यूज किए, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप, पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन। तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशन डिफरेंट कैसे हैं। यहां तक कि आपके दिमाग में यह भी प्रश्न आ सकता है कि ये जो टर्म सोशल है, इस सोशल का मतलब क्या होता है, राइट। अब यूपीएससी ने ये सब बेसिक्स तो सिलेबस में डाले नहीं है, हालांकि अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग सिलेबस की चाहिए तो ये बेसिक्स आपको समझ में आना जरूरी है। तो हम पहले आपको ये इंट्रोडक्टरी, जिसको बोलते हैं एक तरीके से प्री फाउंडेशन, है ना, प्री फाउंडेशन आपके लिए बिल्ड करेंगे, जिसमें 6 to 7 लेक्चर्स हम डेडिकेट करेंगे, ताकि सोशियोलॉजी डिसिप्लिन से आप इंट्रोड्यूस हो जाए और आप उसके जो भी बेसिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी मिल जाएगी। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि कोई भी नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड से जो बच्चा आ रहा है वो ग्रेजुअली सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल होते जाएगा। उसके ऊपर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, वंस वी एंटर इनटू द सिलेबस, आई हैव अ स्टाइल ऑफ सोइंग द सीड। मतलब आगे जो आने वाली चीजें हैं, जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता रहूंगा तो उसको आगे आने वाली चीजों से लिंक करूंगा, और फिर दोबारा जब हम लोग उन टॉपिक पे चलेंगे तो एक बार उस टॉपिक को दोबारा रिविजिट करेंगे। तो ऐसे में मल्टीपल जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स पे, मतलब मल्टीपल पॉइंटर्स पे मैं आपको बार बार लिंक डेवलप करता चलूंगा, तो आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और इनको समझाने के लिए बहुत सारे आपको लाइव एग्जाम्पल्स दूंगा, तो आपके लिए समझना सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे क्लास में फोकस होता है कंटेंट डिलीवरी के अलावा कि हमारे बच्चे समझ सके, एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ फीचर ऑफ लाइव डाउट इंक्वायरी। अब जो भी बच्चे हो, आप कमेंट सेक्शंस में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड आपके जो भी कंसर्न डाउट हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं लाइव उन क्वेरीज को केटर करता हूं, आपके डाउट्स क्लियर करता हूं, ताकि आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बनते जाए। सो आपके लाइव लेक्चर्स होंगे। लाइव लेक्चर्स के अलावा अगले 2 साल के लिए आपको इनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी अवेलेबल रहेगी। तो डेली जो ये लेक्चर्स बनेंगे उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा यूनिट वाइज, है ना, जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूंगा यूनिट वाइज आपके लिए मटेरियल भी मुहैया करवाया जाएगा। तो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशियोलॉजी का बोथ द पेपर्स का, पेपर 1 का, पेपर 2 का मटेरियल बन जाएगा, और ये मटेरियल जो होगा वो अपडेटेड होगा, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है सोसाइटी में जो नया होता है, जैसे कि सोशियोलॉजी में हमें सिलेबस में एग्जांपल आपको देता हूं कि पेपर 2 में एक सिलेबस का एक टॉपिक है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं रजनी कोठारी साहब का, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो उन्होंने उनका जो वर्क है उसने हाईलाइट किया कि कैसे पहले जब तक कांग्रेस का डोमिनेंस था तो फर्स्ट पार्टी सिस्टम था, फिर कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने लगे, पहले स्टेट और रीजनल पार्टी सिस्टम बना, क्योंकि स्टेट्स में और रीजनल पार्टीज का इमरजेंस होने लगा और स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस हारने लगी थी, तो एक नया पॉलिटिकल सिस्टम बना। उसके बाद जब 90s में कोलिशन गवर्नमेंट बना तो फिर एक सेकेंड पार्टी सिस्टम, तो फिर मल्टी पार्टी सिस्टम बना। फिर 2014 में हम देखते हैं कि एक नई पार्टी इमर्ज होती है और उनका पॉलिटिकल पावर बढ़ने लगता है, तो दैट वाज सेकेंड पार्टी सिस्टम जो वो कहते हैं। अभी हम लोग 2024 में इलेक्शन देखे हैं जिसमें पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं आई है, और एक दफा फिर हमें कोलिशन गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट दिखा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड पार्टी सिस्टम है उसकी डोमिनेंस जो है कम हो गई है और दोबारा एक टिल्ट दिखा है मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ। तो ये चीज क्या हो गया, ये फिनोमेना अपडेट हुआ है। तो सोशियोलॉजी में हालांकि 80 to 90% ऑफ द सिलेबस तो स्टैटिक होता है। अगर आप हर साल के सिलेबस को और हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि कम से कम आपको 17 to 18 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक के पूछे ही जाते हैं, अप टू 20 to 23 क्वेश्चन, राइट। तो स्टैटिक थीम सबसे मेन होता है, उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट डेवलपमेंट होना चाहिए, वो तो होगा ही। एट द सेम टाइम क्लास में डायनामिक इवेंट्स से रिलेटेड हम आपको एग्जाम्पल देके और थ्योरीज देके आपके कंटेंट को और कॉम्प्रिहेंसिवली एनरिच करेंगे। जैसे कि मणिपुर में जो इंसिडेंट्स हुआ उसको हम एथनो नेशनलिज्म के फेनोमेना से लिंक करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ट्राइबल असर्शन एंड ट्राइबल डिसकंटेंट
को समझने की कोशिश करेंगे और उससे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या है कि आपको वो एक फियर नहीं आएगा कि मैं एग्जाम में कंटेंट से डिप्राइव्ड हूं या हमें क्या क्या पढ़ना है। और ये जो कंटेंट होगा ये बहुत सारी बुक्स से कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने गैदर कर रखा है। तो आपको जब कंटेंट मिलेगा तो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मिलेगा। सो कंटेंट वाइज यू वुड बी सेटिस्फाइड, यू विल गेट अ रिच कंटेंट एंड दैट इज माय गारंटी, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपका कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवरेज होगा। उसके अलावा हमारा फीचर है कि वी अराउंड 140 to 150 क्लासेस में हम कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर करते हैं। सो दैट एस्पेक्ट विल बी आल्सो अवेलेबल टू यू। एंड देन आपको हम अराउंड 10 टेस्ट्स ऑफर करते हैं, राइट। इसमें हम आपको क्वेश्चंस भी पूछेंगे, कुछ हाफ लेंथ टेस्ट्स होते हैं, कुछ फुल लेंथ टेस्ट्स होते हैं, है ना। आपको क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिवली मिलेगा, आप उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। जो भी टेस्ट का डेट होगा उस डेट पे आप उनको अपलोड करेंगे, फिर इवैल्यूएट करके आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो आपको उसमें इवैल्यूएशन भी हम साथ में फ्री दे रहे हैं और उसके साथ आपको मॉडल आंसर भी मुहैया करवाया जाएगा। और मैं कोई भी टेस्ट शुरू होने से पहले ही मैं आपके लिए आंसर राइटिंग का एक लेक्चर भी ले लूंगा। तो आंसर राइटिंग लेक्चर से क्या होगा, आप आंसर राइटिंग फेनोमेना से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और इस लेक्चर से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि डायरेक्टिव्स का क्या रोल होता है आपको आपके आंसर को गाइड करने में, आंसर राइटिंग की वेटेज क्या है, यूपीएससी कैसे इवैल्यूएट करती है, कौन से मापदंडों को आपको दिमाग में रखना है बिफोर यू राइट एन आंसर, है ना, और कैसे एक स्ट्रक्चर्ड आंसर आप लिखते हैं। तो आप ये कॉम्प्रिहेंसिवली सीख पाएंगे, तो ये भी आपका फायदा करेगा। उसके अलावा जो हमारा कंटेंट बिल्ड करेगा वो इस प्रकार से होगा कि आप देखिएगा कि पीवाईक्यूज जो है वो भी उससे आंसर हो जाएंगे, तो आपके पीवाईक्यूज की भी अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, राइट। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे बैच की, और ये 18 जुलाई को शुरू हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे हम क्लास रखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये 2 PM to 4 PM होगा या फिर 3 PM to 5 PM, बट मोस्ट प्रोबेबली एज ऑफ नाउ ये 2 PM to 4 PM होगा। एंड द क्लासेस विल बी कंडक्टेड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, वेयर मंडे एंड फ्राइडे के अलावा जो वीकेंड्स है वो हम आपके लिए ऑफ करते हैं। जो टेस्ट होंगे वो आपके लिए संडेज को प्लान होंगे, जब भी होंगे। और वीकेंड को ऑफ करने का रीजन ये होता है कि जो भी मंडे टू फ्राइडे एक बच्चा पढ़ा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप वीकेंड्स को उसको कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करें। सोशियोलॉजी प्रिपरेशन का अप्रोच मैं आपको अगर बताऊं, क्योंकि ये लंबा समय होता है, 6 से 7 महीने आपको पूरा सब्जेक्ट को समझने में लगता है। तो उसके लिए एक बेसिक आपकी तरफ से जो एफर्ट पुट करना होता है वो ये होता है कि जो भी आप वीकली पढ़े हो उसको आप रिवाइज करते चलो। जब आप रिवाइज करते हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने से आपके लिए आसान हो जाता है कंटेंट को दूसरे टॉपिक से लिंक करना, और जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो उस कंटेंट का रिप्रोडक्शन इज आल्सो इजी फॉर यू गाइस। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। इस प्रकार से चलता रहेगा। उसके अलावा मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश करता हूं कि आपको पर्सनल मेंटरशिप दे सकूं। मैं तो क्योंकि लाइव लेक्चर है तो आप मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे और आपके क्वेश्चंस को मैं केटर कर पाऊंगा। सो ये एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कोर्स का, राइट। So that is about our course. It is coming on 18th of July. Those who are interested, please आप PW Only IAS के वेबसाइट पे जाएं और एनरोल कर लें इस कोर्स में। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, एक बार आपको सोशियोलॉजी के सिलेबस से अवगत करवाता हूं। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शन। When you will look at syllabus of sociology option, तो ये सिलेबस 2 भाग में बांटा गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, ये जो ईच पोर्शन है यहां पे, राइट, ईच पोर्शन हैज 250 मार्क्स। ये एक पेपर जो है, ईच पेपर इट हैज 250 मार्क्स। तो 250 मार्क्स का पेपर 1 पूछा जाता है और 250 मार्क्स का पेपर 2 आपसे यूपीएससी पूछता है। ठीक है, अगला चीज जो आपको जानना है कि पेपर 1 क्या है। पेपर 1 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर 1 का क्या नाम बताया मैंने, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। और पेपर 2 का नाम है इंडियन सोसाइटी
structure and change, right? So as the name suggests, fundamentals of sociology, what does this mean? This means that in this paper, basic concepts, theories, अगर आपके सरल भाषा में बोलूं तो जैसे मैथ्स में आप पहले बचपन में फॉर्मूला पढ़ते थे ना, तो सोशियोलॉजी को समझने के लिए कुछ फॉर्मूला मिलेगा। इसमें आपको सोशियोलॉजी के पेपर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, है ना। इसमें आप क्या क्या समझेंगे? इसमें सबसे पहले समझेंगे कि सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज होता है ना, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर सोशियोलॉजी एज अ सोशल साइंस कैसे दूसरे सोशल साइंसेस से भिन्न है। सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन पढ़ता क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका स्कोप क्या है। सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से कैसे विपरीत है। फिर आप पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन जो है, तो इसमें जब सोशल साइंटिस्ट किसी भी सोशल फेनोमेना को पढ़ता है, जैसे कि मान लीजिए कोई सोशल मूवमेंट हुआ, जैसे कुछ सालों पहले भारत में हम देखे थे कि फार्मर्स मूवमेंट हुआ था, तो उस फार्मर्स मूवमेंट को पढ़ता है, तो उसको देखने का, उस मूवमेंट को देखने के कई सारे चश्मे होते हैं, कई सारे नजरिया, जिसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव, व्यूज, मल्टीपल पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस करता है। तो आप मल्टी डायमेंशनली एक किसी इवेंट को समाज में, या समाज में बहुत सारे जो इवेंट इंटरैक्शंस होते हैं, उनको समझ पाएंगे। सो इट हेल्प्स यू इन दैट। सो आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझेंगे इसमें। सोशल थिंकर्स पढ़ेंगे, बहुत सारे सोशल थिंकर्स आते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमाइल डर्कहाइम, टालकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, जी.एच. मीड। ये 6 तो सोसाइटी मतलब हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड थिंकर्स हैं। इसके अलावा कुछ और थिंकर्स हैं जिनके हम वर्क पढ़ेंगे, तो इनके वर्क, इनकी थियरीज वो हम पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन, इक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है, पॉवर्टी क्या होता है, डेप्रिवेशन क्या होता है, क्लास क्या होता है, कास्ट क्या होता है, जेंडर क्या होता है, रेस क्या होता है, एथनिसिटी क्या होता है। सोसाइटी में जो लोग स्ट्रैटिफाइड है, मतलब कि अलग अलग ग्रुप में जो डिवाइडेड हैं, वो कौन से मापदंडों पे उनका डिवीजन हो रखा है ना। और सोसाइटी में लोगों का जो स्टेटस स्केल में पोजीशन चेंज होता है, वो इस फेनोमेना को कहते हैं सोशल मोबिलिटी। वो सोशल मोबिलिटी कैसे हो पाता है, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा हम अप्लाइड पार्ट भी पढ़ते हैं, कि मतलब आज हम काम कर रहे हैं, तो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में कैसे पैटर्न्स इमर्ज हो रहे हैं, हमारा वर्क और इकोनॉमिक लाइफ कैसे अरेंज्ड है। जैसे कि हमने कुछ साल पहले देखा था कि कोविड आ गया था, तो कोविड में हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज उस सिचुएशन के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, अडेप्ट करने की कोशिश करती है। क्या? वर्क फ्रॉम होम, राइट। तो ऐसे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं कि वर्क फ्रॉम होम हुआ, कैसे कैसे वर्क में वर्क फ्रॉम होम को अप्लाई किया जा सकता है, कौन से लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। फॉर एग्जांपल, कोई अगर आईटी में काम कर रहा है, तो भाई साहब वो तो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है एक किसान के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है? उसके लिए तो काम खेत में जाके ही होगा। आप समझ रहे हो? तो ऐसी चीजों को हम लोग समझते हैं, तो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ पढ़ते हैं। फिर हम पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पढ़ते हैं कि पावर कैसे सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पावर की बहुत सारी थियरीज पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होती है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है ना। नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट, स्टेट नेशन में क्या डिफरेंस है, इंडिया एक नेशन स्टेट है या स्टेट नेशन है, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। आइडियोलॉजी क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, सोशल मूवमेंट्स क्या होती हैं, ऐसी चीजों को हम पढ़ते हैं। देन रिलीजन एंड सोसाइटी हम पढ़ते हैं। फिर फैमिली, किनशिप, मैरिज, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और आखिरी में समाज में तब्दीली कैसे होता है, सोशल चेंज कैसे होता है, हम उसको पढ़ते हैं। उसी प्रकार से हम आते हैं पेपर 2 में। अब इसमें हम पेपर 1 में हम देखते हैं टोटल 10 यूनिट्स है। मैं डिटेल में आपको सिलेबस थोड़ी देर में दिखाता हूं आगे जाके। पेपर 2 जो है वो इंडियन सोसाइटी पे फोकस है। पेपर 1 जो है वेस्ट में सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ था, तो इसमें मोस्टली हम वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ इंडियन थिंकर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे मैं आपको स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर में अमर्त्य सेन के व्यू पढ़ाऊंगा, आंद्रे बैथे के व्यू पढ़ाऊंगा, जब हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड अप्रोच से सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, ताकि आप वेल इक्विप्ड हो जाओ पेपर 1 के कॉन्सेप्ट को पेपर 2 में अप्लाई करने में, एंड पेपर 2 के कॉन्सेप्ट को पेपर 1 में अप्लाई करने के लिए। तो आपका आंसर बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव एंड एनरिच्ड होगा। और ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। टाइम टू टाइम मैं टॉपिक्स को जब लिंक करूंगा तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर 1 जो है विच इज फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें आप फॉर्मूला तैयार करते हो, है ना, मतलब सोशियोलॉजी को समझते हो, उसके कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को समझते हो।
पेपर 2 में क्या होता है, हम सोशियोलॉजी को अप्लाई करते हैं इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो हम देखते हैं कि यही सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कौन कौन से सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए अप्लाई होता है। जैसे इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव बनता है जो कि इंडिया को कल्चरल और टेक्सचुअल व्यू से पढ़ता है, इसको हम बोलते हैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसके अलावा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, जो कि हम पेपर 1 में भी पढ़ेंगे, उसको पेपर 2 में कैसे मॉडिफिकेशंस के साथ इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए डिफरेंट थिंकर्स अप्लाई किए, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि यूरोपियन सोसाइटी में क्या हुआ था, कुछ हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स हुए थे, जैसे रेनेसां आपको बताया था, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बताया था, तो एनलाइटनमेंट बताया था। तो इन सब इवेंट्स के कारण हमने देखा था जो चेंजेस, तब्दीलियां आई थी, उससे सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ था। लेकिन भारतीय सोसाइटी में अगर वैसा मैं एक वाटरशेड इवेंट की बात करूं तो वो है कॉलोनियल रूल। भारत में जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश राज एस्टैब्लिश किए, तो हमारे यहाँ बहुत सारी तब्दीली लाए। जैसे यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम में तब्दीली लाए, है ना, यहाँ का फ्यूडल स्ट्रक्चर में तब्दीली लाए, उसको कैपिटलिस्ट बनाने लगे, है ना। पहले जो यहाँ पे जजमानी सिस्टम था उसका ब्रेक डाउन होने लगा, है ना। आपने हिस्ट्री के किताबों में पढ़ा हुआ कि कैसे ब्रिटिशर्स ने लैंड टेन्योर सेटलमेंट्स लाया था, उससे भी सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए थे। तो कॉम्प्रिहेंसिवली हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल, जो कॉलोनियल रूल था, उसका बहुत ही लार्ज इंपैक्ट पड़ा था इंडियन सोसाइटी में, बहुत ही ह्यूज इंपैक्ट पड़ा था, जिसने कुछ ऐसे चेंजेस लाए थे जो कि न्यू थे, जो कि अनप्रेसिडेंटेड थे, और इन चेंजेस को पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी इमर्ज होता है। देयरफॉर इसमें हम लोग इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल भी पढ़ते हैं, है ना, इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। ये सारा चीज जो है, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक तरीके से सोशियोलॉजी की दे रहा है, तो ये हम पार्ट ए में पढ़ते हैं। पेपर 2 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए इज अबाउट दैट कि कैसे अलग अलग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए, और कॉलोनियल रूल का इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी पे। फिर आता है पार्ट बी। ये जो पार्ट बी है, ये सोशल स्ट्रक्चर, हमारे यहां जैसे क्या सोशल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, इसके अंदर हम लोग एग्रेरियन स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, लैंड रिफॉर्म्स को पढ़ते हैं, विलेज सोसाइटी को पढ़ते हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंडियन सोसाइटी का सबसे चीफ स्ट्रक्चर था, विच इज कास्ट सिस्टम को पढ़ते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया को पढ़ते हैं। इसके अलावा हम सोशल क्लासेस इन इंडिया को भी पढ़ते हैं, रिलीजन एंड सोसाइटी को पढ़ते हैं, और सिस्टम ऑफ किनशिप, मतलब फैमिली, मैरिज, इंडियन सोसाइटी में फैमिली कैसे होते हैं, ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, मैरिज कैसा होता है, क्या है कोई किनशिप पैटर्न इंडियन सोसाइटी में अलग अलग रीजन में दिखता है क्या, इससे रिलेटेड कुछ वर्क हो, इरावती कर्वे मैम का जैसे वर्क है, इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको अच्छे से ये समझाऊंगा। और उसके बाद पार्ट सी जो है वो कंप्लीटली अप्लाइड पार्ट है ना। इसके अंदर आप देखेंगे कि आजादी के बाद जैसे कि प्लानिंग हुई, प्लान डेवलपमेंट हुआ, तो क्या इकोनॉमिक चेंज का क्या विजन था, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल सोसाइटी का कैसे डेवलपमेंट हुआ, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स का क्या एफिकेसी था, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आए, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी भी हम पढ़ते हैं, सोशल मूवमेंट्स कैसे हुए इंडिया में, उनके कैटेगराइजेशन को देखेंगे कि फार्मर्स मूवमेंट क्या है, पेजेंट मूवमेंट क्या है, फार्मर्स मूवमेंट पेजेंट मूवमेंट में डिफरेंस क्या है, विमेन्स मूवमेंट क्या होता है ना, और अलग अलग विमेन्स मूवमेंट के बारे में हम लोग सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। देन बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट क्या है, दलित मूवमेंट्स क्या है, एनवायरमेंटल मूवमेंट, अगर हम एकदम कंटेम्प्रेरी की बात करें तो आज एथनिक मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, आइडेंटिटी मूवमेंट, ये सारे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो हम इन सबको कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हैं। फिर हम जैसे आप जीएस में पढ़ते हो पॉपुलेशन डायनामिक्स, हम यहाँ पार्ट सी में पॉपुलेशन डायनामिक्स पढ़ते हैं, उसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। और लास्ट टॉपिक जो है पार्ट सी का, वो है चैलेंजेस इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जो सोशल चेंज आ रहा है आजादी के बाद, हम लोग इंडिया को एक सक्सेसफुल सोशल डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश किए। अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं तो आपको यह पता होगा कि हमारा आइडिया क्या था, हम एक ऐसा सोसाइटी बनाए जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, लेकिन उस ग्रोथ का बेनिफिट सबको मिले, है ना। तो हम एक इक्वालिटी ओरिएंटेड सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो कि इंटीग्रेटेड हो सोशल जस्टिस के मापदंड पे, है ना। सामाजिक न्याय क्या होता है ना। लेकिन ये जो इस प्रकार की जो हम तब्दीली अपने समाज में लाना चाहते हैं, इसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ लेट अस फॉर्मली गो थ्रू द सिलेबस। तो जैसा मैंने आपको समझाया, पेपर 1 इज फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसके अंदर टोटल 10 यूनिट है, टोटल है 10 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट का नाम है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। इसमें हमको सोशियोलॉजी
से इंट्रोडक्शन मिलता है कि सोशियोलॉजी कैसे, तो अराउंड आपको, क्योंकि शुरुआती लेक्चर है, आपको बहुत बैकग्राउंड देना होता है, तो इसमें 10 से 11 लेक्चर हम लेते हैं, है ना। क्योंकि हालांकि आप एग्जाम में देखिएगा तो इसमें 20 से 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप सोशियोलॉजी के इमर्जेंस का बैकग्राउंड कॉम्प्रिहेंसिवली समझें। तो इसमें मॉडर्निटी क्या होता है, कौन कौन से इवेंट है जिसने मॉडर्न सोसाइटी को क्रिएट किया था, और कैसे उसने इंपैक्ट सोसाइटी को, यूरोपियन सोसाइटी को इस प्रकार से किया था कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्ज होने लगता है। तो पहला टॉपिक इसमें वही है, मॉडर्निटी, सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। दूसरा टॉपिक है सोशियोलॉजी पढ़ता क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस। और तीसरा, जब सोशियोलॉजी अपनी थ्योरीज बनाना शुरू किया, है ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करना शुरू किया, तो बहुत सारी बातें हुई कि भाई ये तो कॉमन सेंस है। तो इसमें वो डिबेट हम देखते हैं कि क्या सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है या क्या सोशियोलॉजी कॉमन सेंस नहीं है। अगर सोशियोलॉजी कॉमन सेंस नहीं है तो फिर क्या डिस्टिंक्शन है कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में। फिर हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग थिंकर्स का व्यू, कि क्या थिंकर्स इस पे कमेंट करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि अगर सोशियोलॉजी में कॉमन सेंस का एकोमोडेशन है तो वो कैसे है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली इस प्रकार से हम पहले यूनिट को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे दूसरे यूनिट पे, जिसमें अराउंड 10 लेक्चर लगेगा। जी हाँ, पेपर 1 में थोड़ा ज्यादा समय लगता है क्योंकि आपको बैकग्राउंड बताना होता है। इसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे कि साइंस क्या होता है ना, सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं है उसका इवैल्यूएशन करेंगे, साइंटिफिक मेथड के क्रिटिक्स क्या है, सोशियोलॉजी में जब हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं तो उसके क्या लिमिटेशंस हैं। फिर जो मैंने आपको बोला था मेजर थियोरेटिकल स्टैंड, मतलब ये सोशियोलॉजी का चश्मा है ना, जो नजरिया, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसके अंदर फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, है ना, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है दो मेथोडोलॉजी की बात, बहुत पॉपुलरली सोशियोलॉजी में होती है, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। मतलब ये पॉजिटिविस्ट कौन थे, जो सोचते थे कि नेचुरल साइंस की तरह सोशियोलॉजी भी नेचुरल साइंस के मेथड को अप्लाई करके सोसाइटी को पढ़ सकता है। और नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड, जो कि इस बात से, पॉजिटिविस्ट एनालॉजी से डिफर करते हैं। उनका कहना है कि यार सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, सोशल इंटरैक्शन जो है ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू होता है। ह्यूमन बीइंग को और किसी मैटर को, जैसे ये पेन मैटर है, इसको आप इक्वेट नहीं कर सकते हो, ये नॉन लिविंग थिंग है, ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग है, उसमें कॉन्शियसनेस होता है, वो पैसिव बीइंग तो है नहीं। देयरफॉर सोशियोलॉजी को अपने मेथड्स बनाने चाहिए क्योंकि उसका सब्जेक्ट मैटर यूनिक है। तो नेचुरल साइंस के जो मेथड्स, जो कि मैटर को क्या कहते हैं, पैसिव मैटर को पढ़ने के लिए बना हुआ है, वो इनएफिशिएंट रहेगा, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा और आप अच्छे से सोसाइटी की स्टडी नहीं कर पाओगे। तो हम लोग नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी और फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी ये सब पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, यूनिट 3 है रिसर्च मेथोडोलॉजी। जो भी सोशल साइंटिस्ट होते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, सोशियोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सोसाइटी। तो जो भी रिसर्च, जो भी सोशल साइंटिस्ट होते हैं, उनकी जो बातें, जो थियरीज बनती हैं, राइट, वो थियरीज किसी रिसर्च पे, है ना, साइंटिफिक स्टडी है ये, है ना, किसी रिसर्च पे बेस्ड होता है। तो हम लोग बहुत सारे रिसर्च के मेथड्स को पढ़ेंगे कि भैया सोशियोलॉजिस्ट जो रिसर्च करेंगे तो किस प्रकार के, कुछ क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं। तो अब रिसर्च हम करेंगे तो मैंने बोला कि एविडेंस बेस्ड स्टडी करता है सोशियोलॉजी। डेटा कलेक्ट करेंगे तो डेटा कलेक्शन के क्या मेथड्स हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये सब चीज हम पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, इसमें अलग अलग टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन हम लोग देखेंगे। फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या होते हैं, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे चौथे टॉपिक पे। ये जो चौथा टॉपिक है, ये सोशियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकता हूं, बिकॉज ये सोशियोलॉजी का स्केलेटन है, इसको रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, ये सोशियोलॉजी का कोर है ना। ये है सोशल थिंकर्स। इसमें अराउंड 20 से 25 लेक्चर आप पकड़ लीजिए, ये सबसे मेन है। अब यहां जो मैंने आपको बोला ना, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर और उसके बाद आने वाला ये चैप्टर स्ट्रैटिफिकेशन, इनको आप अगर अच्छे से समझ लें तो आप समझिए आपका सोशियोलॉजी सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि बाकी के पोर्शन जो हैं उनमें इन्हीं कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। इनफैक्ट पेपर 2 में भी इनके कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो रिसर्च मेथड में तो हम अराउंड 4 to 5 लेक्चर हमारे लिए सफिशिएंट होता है, बट मैंने बोला ये कोर है सोशियोलॉजी का, सोशल थिंकर चैप्टर, इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे अराउंड
20 से 25 लेक्चर इसमें देंगे। हमें हमारे यूपीएससी ने जो हमारा सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया है, इन दैट वी हैव टू रीड, वी हैव टू प्रिपेयर 6 थिंकर्स, कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, टालकट पार्सन, आर.के. मर्टन और जी.एच. मीड। अब कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले हैं, एमाइल डर्कहाइम एक फंक्शनलिस्ट है एंड साथ में पॉजिटिविस्ट है, मैक्स वेबर जो है वो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी के फाउंडर है, टालकट पार्सन जो है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, आर.के. मर्टन क्रिटिक इन्होंने प्रोवाइड किया था टालकट पार्सन को, इनको नियो फंक्शनलिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर मान सकते हैं, और जी.एच. मीड ये खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, इन्होंने सोशल बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट लाया था। और इनका लेक्चर हमारा 1 से 2 क्लासेस का ही होने वाला है, क्योंकि हमें बस इनका सेल्फ आइडेंटिटी, आई मी, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। बेसिकली इनको हम कह सकते हैं कि ही इज प्रीकर्सर टू सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट स्कूल। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म तो हर्बर्ट ब्लमर ने फाउंड किया था, उसने ये टर्म कॉइन किया था, लेकिन उनके काफी पहले जी.एच. मीड का जो वर्क हम देखते हैं तो उन्होंने प्रैग्मेटिज्म के जो प्रिंसिपल्स दिए थे उसी से सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म इंस्पायर्ड है। तो वी कैन कॉल जी.एच. मीड एज ग्रैंडफादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म बिकॉज हिज वर्क एक्ट्स एज प्रीकर्सर टू सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। तो ये इनके सारे वर्क हमें नहीं पढ़ने हैं। जैसे मार्क्स के हमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन और क्लास स्ट्रगल पढ़ना है। डर्कहाइम का हमको डिविजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुइसाइड, रिलीजन इन सोसाइटी पढ़ना है। लाइकवाइज मैक्स वेबर का हमें सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, और उनका एक बहुत ही फेमस एसे था प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि कैसे प्रोटेस्टेंट रिलीजन के जो वैल्यूज थे उसने समाज में ऐसे चेंजेस लाए जिससे कैपिटलिज्म के स्पिरिट को बूस्ट हुआ। राइट, तो हम देखेंगे कि हाउ वैल्यूज ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक इज इन हार्मनी विद कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कैपिटलिज्म। फिर हम लोग टालकट पार्सन, इनका 2 ही टॉपिक है, सोशल सिस्टम एंड पैटर्न वेरिएबल्स। लेकिन सोशल सिस्टम को समझने के लिए पहले टालकट पार्सन का सोशल एक्शन थ्योरी समझना जरूरी है। तो मैं जैसे आके आपको बोला कि क्लास में हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते हैं, तो हम लोग सोशल एक्शन थ्योरी भी इसकी कवर करेंगे। देन आर.के. मर्टन, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें जैसे इनका सबसे पहले तो हम मिडिल रेंज थ्योरी पढ़ेंगे। वो मिडिल रेंज थ्योरी सजेस्ट करते हैं एज क्रिटिसिज्म टू टालकट पार्सन्स ग्रैंड फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। उसके अलावा हम लोग इनके लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शंस को पढ़ेंगे, डेवियंस थ्योरी को पढ़ेंगे, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी को पढ़ेंगे। जब हम जी.एच. मीड की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इनका सेल्फ एंड आइडेंटिटी, आई एंड मी, कि कैसे है ना सेल्फ कैसे बनता है और सेल्फ के अंदर कैसे हमारा सोशल आइडेंटिटी और हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट दोनों इनग्रेन्ड होता है और उन दोनों के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से सेल्फ बनता है। तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। तो ये थिंकर चैप्टर को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे। इसके बाद आएगा स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब कि कैसे सोसाइटी के मेंबर्स को, है ना, हम लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं और कैसे उनकी रैंकिंग करते हैं, कैसे वो हायरार्की में अरेंज्ड होते हैं और कैसे उनके बीच में जो हायरार्किकल रिलेशन होता है उसके कारण उनको समाज में डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। जो हायरार्की में ऊपर है, जो पावरफुल है, वो वेल्दी है, तो उसको समाज में आप देखिए बहुत प्रतिष्ठा होता है, बहुत इज्जत होता है। और जो समाज के स्टेटस स्केल में नीचे होता है उसके अगेंस्ट सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती है, उसको सोसाइटी जो है वैल्यू नहीं करती है। तो कैसे उनका सोशल एक्सक्लूजन होता है, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रैटिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, इनको हम डिटेल में देखेंगे। फिर स्ट्रैटिफिकेशन की कुछ थ्योरी है, जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी, वेबरियन थ्योरी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, उसके अंदर पार्सनियन थ्योरीज भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। फिर किंग्सले डेविस एंड विल्फ्रेड मोर की भी थ्योरी पढ़ते हैं और उसके साथ ही साथ उनके क्रिटिसिज्म्स को भी हम देखते हैं। तो विल लर्न अबाउट दैट। फिर ये जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जो मेंबर्स को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनके कुछ डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि जेंडर, जैसे कि कास्ट, क्लास, स्टेटस ग्रुप, है ना, एथनिसिटी, रेस। तो ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। जी हाँ, यहाँ पे आप सिलेबस देखिएगा तो कास्ट नहीं लिखा है, लेकिन मैं यहाँ क्लास पढ़ाने के इमीडिएटली बाद आपको फर्स्ट राउंड कास्ट सिस्टम में यहीं पे पढ़ाऊंगा, ताकि आप कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम को एक बार कंपेयर कर सकें। और जब मैं आपको ये ओपन एंड क्लोज सिस्टम पढ़ाऊं, सोशल मोबिलिटी का सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन 2 टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज। तो अब कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम के एग्जाम्पल से ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन और क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन को समझ सके, तो इसीलिए मैं पहली दफा कास्ट यहां पे पढ़ाऊंगा। आप टेंशन ना ले, आगे भी पढ़ाऊंगा 2-3 दफा। तो जब तक हम लोग कास्ट सिस्टम वाले टॉपिक पे चलेंगे, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
देन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस टॉपिक के बाद पेपर 2 चले जाते हैं और पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाना शुरू कर देते हैं टिल पार्ट बी, और उसके बाद जो सेम टॉपिक सिमिलर टॉपिक्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे, जो मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस रही है उसमें उन्होंने बोला है कि इसमें सर नोट्स मेकिंग में भी बड़ा ही घिचपिच हो जाता है और कई दफा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, रिवीजन करते वक्त में कंफ्यूजन होता है। तो हमारे यहाँ हम वो नहीं करते, हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली पहले पेपर 1 खत्म करेंगे फिर पेपर 2 को स्विच करेंगे। सो व्हाट वी विल डू इज, इसके बाद हम लोग वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ पढ़ेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन और मोबिलिटी में अराउंड आप पकड़ लीजिए कि 8 से 9 लेक्चर है ना, 8 मैक्सिमम 9 लेक्चर अप टू 8 लेक्चर, 8 to 9 लेक्चर्स हम देंगे सर्टिफिकेशन और मोबिलिटी में। उसके बाद वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ चलेंगे। इसमें ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन और वर्क पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स, मतलब स्लेव सोसाइटी में वर्क ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, फ्यूडल सोसाइटी में कैसा था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैसा था। हालांकि अगर यूपीएससी के पेपर को आप देखिएगा तो पिछले बहुत सालों से इन पे सवाल पूछा नहीं गया है, हालांकि फिर भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तो इस टोटल यूनिट में 3 लेक्चर लगते हैं, इसमें एक दिन पूरा मैं लेबर एंड सोसाइटी को दूंगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और इससे अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, राइट। इसके अलावा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, और वर्क से रिलेटेड कुछ इनोवेशन हो रहे हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर अगर आप देखिएगा तो टेलरिज्म पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो हम क्लास में ऐसे भी, मतलब लास्ट ईयर के पहले भी मैं तो पढ़ाता ही आया हूं, मेरे अगर प्रीवियस बैच के बच्चों से आप पूछोगे तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम लोग इनको कवर करेंगे। देन विल मूव टू, अब ये वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में अराउंड 3 लेक्चर्स हम लोग देंगे। देन विल मूव टू पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये 7th यूनिट है, अभी तक हम 6 यूनिट देख चुके हैं, ये 7वां यूनिट है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। अब पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, थियरीज ऑफ पावर, पावर एलीट क्या है, ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, मैं आपको पहले ये सब बता चुका था, नेशन स्टेट क्या होता है, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी क्या होता है, आइडियोलॉजी क्या होता है, और उसके बाद सोशल मूवमेंट क्या होता है उसको पढ़ेंगे। तो आप पकड़ लीजिए कि ये 708 लेक्चर, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि बच्चे कितना इजीली समझ रहे हैं, क्लास का टेम्पो कैसा है उस पर डिपेंड करेगा ऑर्गेनिकली। रिलीजन एंड सोसाइटी, इसमें हम लोग थियरी ऑफ रिलीजन पढ़ेंगे, अलग अलग थियरी ऑफ रिलीजन है, कुछ जैसे डरखाइम का वर्क हो गया, फेमिनिस्ट थियरी ऑफ रिलीजन है ना, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन, तो अलग अलग थियरी पढ़ेंगे हम लोग रिलीजन का। फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे कि एनिमिज्म हो गया है ना, प्लूरलिज्म हो गया, इन सबको हमको पढ़ना है, मोनिज्म हो गया, सेक्ट और कल्ट क्या होते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में अगर आप देखिएगा तो स्पेसिफिकली ये नहीं मेंशन्ड है कि हमें चर्च और डिनोमिनेशन पढ़ना है, बट अगर आप सेक्ट और कल्ट को समझना चाहें कॉम्प्रिहेंसिवली, और अगर आप सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का अगर आप मैप समझना चाहें इन जनरल, तो आपको चर्च मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और डिनोमिनेशन जो कि चर्च और सेक्ट के बीच का चीज होता है, इसको भी समझना जरूरी है। तो ऑल दो सिलेबस में मेंशन नहीं है, मैंने बोला ना ये बैच में काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कंटेंट कवरेज होता है, तो हम ये भी कवर कर लेंगे। देन रिलीजन, दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डील विथ। तो मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन, इस टॉपिक में क्या है कि साइंस और रिलीजन का डिबेट हम लोग देंगे, कैसे साइंस और रिलीजन डिफरेंट है और कैसे उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी है। फिर सेकुलराइजेशन, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म, मैं यहीं पे कम्युनलिज्म भी इंटीग्रेट कर दूंगा है ना। फंडामेंटलिज्म जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक दफा आपको कम्युनलिज्म मैं यहां पढ़ा दूंगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग, आप कंपेयर कर सकते हैं फिर कि फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो सब चीजें भी आप समझ पाएंगे। देन विल गो टू सिस्टम ऑफ किनशिप। अब ये रिलीजन की बात करूं तो आपको, आप पकड़ लीजिए कि 4 से 5 लेक्चर्स काफी होंगे। सिस्टम ऑफ किनशिप में हम लोग फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज, मैंने आपको पहले भी बताया, वो पढ़ेंगे। फिर टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली पढ़ेंगे, लिनिएज एंड डिसेंट पढ़ेंगे, पेट्रियार्की, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल गारंटीड क्वेश्चन होता है, ये पढ़ेंगे। और इसको हम लोग कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स के साथ इंटीग्रेट करते हुए पढ़ेंगे है ना, इसको एक इंटीग्रेटेड मैनर में कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स के साथ पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको दूंगा अराउंड 5 लेक्चर्स। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे सोशल चेंज, इसमें सोशल चेंज की बहुत सारी थियरीज है, वो पढ़ेंगे। फिर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थ्योरी, जैसे डब्ल्यू रोस्टो का डेवलपमेंट थ्योरी, और जैसे एफ.जी. फ्रैंक का डिपेंडेंसी थ्योरी, जो कि यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, जो कि हर ऑल्टरनेट ईयर यूपीएससी पिछले 3 ऑल्टरनेट ईयर्स को देखे, मतलब पिछले 5 साल में 3 दफा पूछ चुका है। तो इस टॉपिक को हम लोग, इन टॉपिक्स को देखेंगे। फिर एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज देखेंगे, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज। तो जब हम एजुकेशन एंड सोशल चेंज और साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज की बात करेंगे तो यहां भी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स जो हैं इनको हम लोग एनालाइज करते हुए क्लास में चलेंगे। तो आपके लिए करंट की चीजें इंटीग्रेट भी होती रहेंगी और आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग भी बनता रहे। देन वी कम टू पेपर 2।
जो कि मैंने आपको बताया था इंडियन पेपर है, इंडियन सोसाइटी के ऊपर, ये भी 250 मार्क्स का होने वाला है। इसका नाम है सोशल स्ट्रक्चर, इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज। इसके 3 पार्ट है, मैंने आपको जैसे बताया था। पहला पार्ट जो है उसमें उसके 2 भाग हैं, A1 एंड A2। A1 जो है उसमें मैंने आपको बताया ना कि भारतीय सोसाइटी को पढ़ने के क्या नजरिया है, कौन से नजरिया है, पर्सपेक्टिव। तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। और इनके थ्रू हम लोग अलग अलग इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं इंडियन पेपर के लिए, उनको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यूपीएससी ने प्रेस्क्राइब किया है कि इंडोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ जीएस घुरे साहब का पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के साथ एमएन श्रीनिवास एक बहुत ही पायनियर थे। जैसे जीएस घुरे साहब को फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी बोला जाता है, डॉयन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। लेकिन अनदर फेमस पायनियर सोशियोलॉजिस्ट जो कि ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट एंड एक्कोलेड्स, जिन्होंने अपनी ख्याति स्थापित की थी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डीएसई में जो सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उस सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के फाउंडर थे ये एमएन श्रीनिवास साहब। इनके वर्क को हम लोग पढ़ेंगे। और देन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को लाते हैं AR देसाई साहब, अक्षय रमन लाल देसाई, इनके वर्क को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी को कहते हैं इंडियन पेपर के कॉन्टेक्स्ट में डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेथड। तो ये डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेथड को भी हम कवर करेंगे। अब यहां पे जब हम पढ़ेंगे गाइस, तो ये जीएस घुरे के अपार्ट फ्रॉम इंडोलॉजी और जो भी वर्क है वो हम यहीं पे देख डालेंगे। तो कास्ट एक बार जीएस घुरे के पर्सपेक्टिव से यहां पे भी कवर हो जाएगा। फिर हम लोग एमएन श्रीनिवास के जो भी वर्क है वो भी हम यहां पे देख डालेंगे। तो कास्ट थ्रू एमएन श्रीनिवास स्टडी एक बार यहां पे भी कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक सेकेंड पार्ट में जब हम आएंगे इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, तो ये किताब है AR देसाई साहब की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये पूर्ण एक खुद में किताब है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एक किताब है। आपके लिए ऑब्वियसली पूरी किताब पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। उसका सार हम क्लास में पढ़ाते हैं और इन दोनों में से एक से क्वेश्चन हर साल आना गारंटीड है, फिक्स्ड है। ये योगेंद्र सिंह साहब बहुत ही फेमस प्रोफेसर थे, अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे। बहुत ही एक्नॉलेज्ड एंड रिनाउंड प्रोफेसर थे जेएनयू के। तो इनका वर्क है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब जब यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको दोबारा सोशियोलॉजी की इमर्जेंस पेपर 1 मॉडर्निटी से लिंक करेंगे, है ना। तो और डिफरेंट थिंकर्स का पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्निटी एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस भी समझेंगे। वो जो मॉडर्नाइजेशन के डिबेट को है वो पेपर 2 में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली समझ के कि मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, इसको हमको कैसे समझना चाहिए, किस प्रकार का ये चेंज है ना, किस प्रकार का तब्दीली आएगा, तो हम कह सकते हैं समाज में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इन सबको समझ के उन डिबेट को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे जाके। तो देखिए आपका पेपर 1 पेपर 2 लिंक भी होता रहेगा और आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी। देन हम लोग प्रोटेस्ट मूवमेंट, कॉलोनियल पीरियड में जो प्रोटेस्ट मूवमेंट होता है उसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हमको देखना है। उसका जो कंटेंट पार्ट है वो तो हिस्ट्री में कवर होता है। हिस्ट्री में यूपीएससी आपसे पूछता है, यहाँ पे आपको उसका सोशल रिफॉर्म्स और प्रोटेस्ट मूवमेंट जो हुए थे उसका क्या पार्ट देखना है, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस देखना है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि आपका जीएस का हिस्ट्री पार्ट से भी यहाँ पे, और पार्ट सी आप देखिएगा तो इकोनॉमिक्स, तो जीएस के भी अलग अलग सब्जेक्ट से सोशियोलॉजी का इंटरसेक्शन होता है। तो ये भी आपके लिए काफी फायदेमंद है। आपको सिलेबस के थ्रू मैं क्लियरली बता रहा हूं कैसे सोशियोलॉजी इज कंट्रीब्यूटिंग टू जीएस 1 2 3 4, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट बी जो है वो है सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब इसके अंदर हमें 6 यूनिट पढ़ना है। पहला है रूरल एंड एग्रेरियन सोसाइटी, इसमें हम लोग विलेज और विलेज स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं, और एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, कैसे ब्रिटिश के लैंड टेन्योर सेटलमेंट से चेंजेस आए सोसाइटी में और कैसे लैंड रिफॉर्म्स का इंपैक्ट पड़ा विलेज सोसाइटी और एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में, इसको हम समझेंगे। देन फाइनली कास्ट सिस्टम, इस टॉपिक पे आएंगे, एक बार फिर सारे पर्सपेक्टिव को पढ़ेंगे, जीएस घुरे, एमएन श्रीनिवास, इसके अलावा लुई ड्यूमोंट और आंद्रे बेते, ये 4 पर्सपेक्टिव यूपीएससी अपने सिलेबस में कहती है, ये सारा हम देखेंगे। देन फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम देखेंगे, अनटचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी की थियरीज जो है हम वो भी देखेंगे, और उसके बाद कास्ट से ही रिलेटेड कुछ करंट टॉपिक्स हैं, जैसे कास्ट सेंसस की बात होती है, जैसे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है, तो हम उन सब चीजों पे भी एनालिसिस करेंगे, उन सब चीजों को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। देन विल मूव टू ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। अब इसके अंदर सबसे पहले कि ट्राइब को डिफाइन करने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि ट्राइब्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। कुछ आप लोग बोलोगे सर ट्राइबल लोग वो लोग हैं जो कि हिल्स पे रहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि हिल्स में नहीं, विलेजेस में रहती है, मेन लैंड में रहती है, हार्टलैंड में भी रहती है। फिर आप बोलोगे नहीं सर वो है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो आपको पता चला कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन तो ऐसी है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, वो कि इकोनॉमिकली फॉरवर्ड है, वेल टू डू ऑफ। तो देख रहे हो
defining tribal communities was a problem for social thinkers. So that is why this topic, और कैसे हम लोग इसको एट्रीब्यूशनल अप्रोच से पढ़ते हैं वो समझेंगे, इनके ज्योग्राफिकल स्प्रेड को समझेंगे ऑन बेसिस ऑफ इकोलॉजी, ऑन बेसिस ऑफ रेस एंड ऑन बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। फिर हम लोग कॉलोनियल पॉलिसीज का क्या इंपैक्ट ट्राइबल्स पे हुआ था उसको देखेंगे, एंड देन इश्यूज ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी की ट्राइबल डेवलपमेंट जो है वो कैसे होना चाहिए, क्या उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट कर देना चाहिए या उनको आइसोलेशन की जरूरत है, इंटीग्रेशन से उनके आइडेंटिटी को, कल्चर को थ्रेट हो रहा है। इस डिबेट को हम लोग देखेंगे। जीएस गोरे एंड वर्नियर एल्विन का एक बहुत ही अच्छा डिबेट है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे नेहरू जी का पंचशील पॉलिसी भी हम लोग देखेंगे, एंड देन एलपी विद्यार्थी का जो कंट्रोल्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसको कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, उसको भी हम लोग देखेंगे इस टॉपिक। देन अब सोशल क्लासेस इन इंडिया पे आ जाऊं। अच्छा, मैं जैसे क्लासेस की बात आपको बता रहा हूं, लेक्चर्स की बात बता रहा हूं, तो आपको अराउंड, सॉरी माय बैड, 3 से 4 लेक्चर आप पकड़ लो, यहां पे लग जाएंगे, है ना। फिर इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल मूवमेंट, इस पे अगर हम लोग बात करें तो आप मोटा मोटी मान के चल लो कि, या थोड़ा ज्यादा मैं अगर कवर करना चाहूं इसमें थोड़ा ज्यादा दूंगा क्योंकि मैं इसके अलावा एक पर्सपेक्टिव मेंशन नहीं है। रणजीत गुहा साहब का देहांत हो गया है पिछले साल 2023 में, तो मेरे हिसाब से तो इसी साल इंपॉर्टेंट है, उनको सवाल पूछ सकता है 2024 में, अगर नहीं पूछा 2025 में भी पूछ सकता है। सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव मैं भूल गया था, मैं ये भी आपको पढ़ाऊंगा। ये सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन सवाल आता है, एक दफा पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है, तो मैं आपको सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़ाऊंगा। तो आप पकड़ लीजिए इसकी 7 से 8 लेक्चर इसको दूंगा और अराउंड 6 लेक्चर इसको दूंगा, तो 15 दिन में पार्ट ए खत्म हो जाएगा। उसके बाद पार्ट बी के लिए आप पकड़ लीजिए, ये मेन है, कोर है, तो इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप जब मैं करवाने की कोशिश करूंगा तो विलेज एंड विलेज सोसाइटी, ठीक है, ये तो 3 to 4 लेक्चर में हो जाएगा। कास्ट सिस्टम, इसको हम लोग ज्यादा टाइम देंगे क्योंकि ये कोर है पेपर 2 का, इसको अराउंड 8 लेक्चर्स हम लोग देंगे, है ना। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव इजी कवरेज होने लगेगा, अराउंड 3 लेक्चर्स काफी होने वाला है आपका ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, लेकिन ज्यादा भी लग सकता है, तो 3 to 4 हम लोग कर लेंगे। सोशल क्लासेस के लिए 1 to 2 लेक्चर हम पकड़ लेंगे, है ना। सिस्टम ऑफ किनशिप पेपर, अब यहां से आप देखिएगा पेपर 1 से इंटीग्रेशन शुरू हो गया। सोशल क्लासेस तो आपको सबसे पहले वाला पेपर 1 में पढ़ाऊंगा ही, पेपर 2 में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ाना है, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि क्लास का कॉन्सेप्ट तो आप ऑलरेडी समझ रखे होंगे। उसी तरह लिनिएज, डिसेंट, किनशिप सिस्टम, फैमिली, मैरिज, इनका कॉन्सेप्ट तो आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे। और ये पेट्रियार्की, एंटाइटलमेंट एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये टॉपिक भी आप पेपर 1 में तो कवर किए होंगे। यहाँ पे हम लोग इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, तो इंडियन थिंकर्स का वर्क्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो कंटेंट का कवरेज इसीलिए थोड़ा जल्दी क्विकली होने लगेगा। तो 3 से 4 लेक्चर आप पकड़ लीजिए, वो हम इसमें दे देंगे। रिलीजन इन सोसाइटी के लिए 2 लेक्चर काफी होता है क्योंकि बस आपको रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया और प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज है, तो 2 लेक्चर्स सफिशिएंट है, उसमें वो कवर हो जाता है। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि क्या पेस पे हम लोग चल रहे हैं क्लास में। देन वी विल कवर सोशल चेंजेस इन इंडिया। नाउ दिस इज पार्ट सी, इसके अंदर 7 टॉपिक है, ये अप्लाइड पार्ट है। इसमें विजन्स ऑफ सोशल चेंज कि क्या होता है, प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्लान डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, तो ये इसके लिए 2 लेक्चर्स काफी होते हैं, 2 से 3 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। देन रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक दफा हम लोग ऑलरेडी पार्ट बी में रूरल एंड एग्रेरियन स्ट्रक्चर समझ रखे होंगे, अब बस उससे रिलेटेड हम लोग चेंज समझने की कोशिश करेंगे। तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या थे, कैसे वो फेल किए, पॉवर्टी एलिविएशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा, एग्रेरियन मोड ऑफ प्रोडक्शन में कैसे इंडियन सोसाइटी में चेंजेस आने लगा, रूरल लेबर के प्रॉब्लम जैसे कि बॉन्डेज, माइग्रेशन, इन सब टॉपिक को देखेंगे। तो ये हमको 2 to 3 लेक्चर्स हम कॉम्प्रिहेंसिव ले देंगे और ये कवर हो जाएगा। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इट विल टेक अराउंड 3 लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स में हम लोग कर लेंगे। इसमें एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड ग्रोथ एंड अर्बन सेटलमेंट, ये एक ही दिन में बहुत ही आराम से कवर हो जाता है। वर्किंग क्लास में ऑलरेडी आपको सोशल क्लासेस में ही पढ़ा चुका हूंगा, वर्किंग क्लास का मोबिलाइजेशन, उनका मूवमेंट, स्ट्रक्चर, सब कुछ, तो मैं आपको एक बार उसको रिव्यू कर दूंगा और उसके बाद एक दिन इनफॉर्मल एंड चाइल्ड लेबर के लिए और एक दिन स्लम्स के लिए। तो
3 दिन में हमारा 2 से 3 दिन में ये कवर हो जाएगा। देन कम्स पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, इसमें हम लोग 3 दिन देंगे क्योंकि हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नेशन को लेके, नेशनलिज्म को लेके डिबेट जो है टैगोर वर्सेस गांधी वो देखेंगे हम लोग। उसी तरह कास्ट सिस्टम में मेंशन नहीं है लेकिन कास्ट सिस्टम और को लेके डिबेट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर हम वहां देखेंगे कास्ट सिस्टम में। तो ये हमारी तरफ से आपको सिलेबस के बियॉन्ड एडिशन मिलता रहेगा क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है, ऑल दो सिलेबस में मेंशन नहीं होता है ना। फिर यहाँ पे हम लोग नेशन, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, पार्टी सिस्टम एंड ऑल दैट, वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। रीजनलिज्म समझेंगे, सेकुलराइजेशन समझेंगे, कम्युनलिज्म यहीं पे समझ लेंगे हम लोग इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, जब हम लोग सेकुलरिज्म इन इंडिया समझेंगे उसके साथ। Then comes social movements in modern India. So this will take another 2 lectures, जिसमें हम लोग this shall be farm movements, ये गलत टाइप हो गया, I'm sorry for that. तो women movement, peasant movement, ये presence नहीं, ये peasant movement होना है। Please accept my sincere apology for typing mistake. Peasant and farm movements, उसके अलावा women's movement, backward classes and Dalit movement, environmental movement, ethnicity and identity movement, ये कवरेज हो गया। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके होंगे, इसमें 2 लेक्चर्स हमारे लिए काफी होगा। पॉपुलेशन डायनामिक्स इज अनदर टॉपिक, अब इसमें भी हम लोग को 2 लेक्चर लगेगा, जिसमें एक लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और कंपोनेंट्स वो हम लोग कवर कर लेंगे, और दूसरे लेक्चर में हम लोग फैमिली प्लानिंग, एजिंग का इशू, सेक्स रेशियो और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम लोग ये टॉपिक कवर कर लेंगे। एंड देन विल मूव टू द लास्ट लेक्चर विच इज चैलेंजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग को क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी कवर्ड रहेगा पहले से, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एथनिक मूवमेंट की जगह ही कवर्ड रहेगा, कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में कवर्ड रहेगा, रिलीजियस रिवाइवलिज्म पेपर 1 में ही कवर्ड रहेगा जब मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा, इलिटरेसी, एजुकेशन एंड सोशल चेंज में ऑलरेडी कवर रहेगा, राइट। तो आपके लिए चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगी। तो इट विल टेक अनदर 2 लेक्चर्स, और इस प्रकार से 140 से 150 लेक्चर्स के बीच में कॉम्प्रिहेंसिवली आपका सोशियोलॉजी खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको ब्रीफली बुक लिस्ट बता देता हूं। 3 बुक पेपर 1 के लिए आप समझ लीजिए, जैसे सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, हर्लम्बस एंड हॉलबॉर्न, ये ब्लू वाली किताब जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं, नॉट ऑरेंज। देन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जॉर्ज रिट्जर, ये सोशल थिंकर्स के लिए काफी यूजफुल है। सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, जो यूपीएससी ने सिलेबस में स्पेसिफाई किया है वही सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। और एक किताब है सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंथनी गिडेंस, ये सब रेफरेंस बुक्स है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर कुछ बुक बताओ, तो मैं बुक बता रहा हूँ। उसी तरह पेपर 2 के लिए सोसाइटी इन इंडिया, ये डेविड मेल्टनबॉम साहब ने किताब लिखी है, वो किताब है। हैंडबुक ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, वीना दास मैम बहुत ही फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने लिखा है। और इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये नदीम हसनैन साहब ने लिखा है पेपर 2 के लिए। ये सब रेफरेंस बुक के हिसाब से काम कर सकता है। हालांकि मैं जो आपको क्लास में कंटेंट डिलीवर करने वाला हूं वो इन सब बुक्स, क्योंकि ये सब बुक्स सेल्फ स्टडी जो करना चाहेंगे उनको रेफर करना है, ये काफी ज्यादा हो जाता है। तो मैं जो आपको क्लास में लेक्चर दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, वो इन सब बुक्स के कंटेंट को कवर करते हुए ऑलरेडी डिलीवर किया जाएगा। तो आप मतलब यू कैन रिलाई ऑन दैट कंटेंट। ये तो फिर भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे बच्चों को होता है कि दे आर बुक रीडर, उनको सेल्फ इच्छा होती है। इसके अलावा मैं एक और बुक बताना चाहूंगा, एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये काफी बच्चों में पॉपुलर है। दिस इज रिटन बाय नितिन सांगवान सर, है ना। ये यूपीएससी के सिलेबस के अराउंड पेपर 1 एक ही किताब है, जिसमें बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कवर होता है ना। तो ये जस्ट एक किताब है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, और ये बाकी सारी जो किताबें हैं ना, ये सोशियोलॉजी की बुक है, रेफरेंस बुक है। ये यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिखी गई है, लेकिन ये किताब जो है ना, ये यूपीएससी को मद्देनजर, यूपीएससी के द्वारा जो सीएससी एग्जाम कंडक्ट होता है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसको मद्देनजर रखते हुए लिखी गई है। तो ये जो एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी है, ये भी किताब आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको अगर एक बार अप्रोच को फाइनली कंसोलिडेट कर दूं कि सोशियोलॉजी के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, तो आप समझ लीजिए। मैंने आपको अभी सोशियोलॉजी का सिलेबस समझाया। जब आप सिलेबस सोशियोलॉजी का समझे तो आप यहां पे देखे होंगे कि देखिए शुरुआत में चैप्टर क्या आ रहा है, जैसे कि सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी एज साइंस, मतलब सोशियोलॉजी कैसा है वो आपको बता रहा है, कैसे इमर्ज हुआ कैसा है वो आपको बता रहा है।
उसी तरह पेपर 2 में भी आप अगर जाएं तो शुरुआत में आप क्या देखते हैं कि आपको सॉरी, हाँ, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, किस पर्सपेक्टिव से इंडियन सोसाइटी को पढ़े और ब्रिटिश रूल का क्या इंपैक्ट था। तो मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आप अप्रोच समझें तो सिलेबस का 3 भाग है। पहला भाग है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ना, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जैसे कि सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या क्या है उसका नजरिया पढ़ने का। पेपर 2 में आप पढ़ते हैं कैसे सोशियोलॉजी इमर्ज होता है, कॉलोनियल रूल का क्या इंपैक्ट हुआ। तो पहला तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। सेकंड, आप सिलेबस को डिवाइड, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सिलेबस आप ऐसा समझना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है कि थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, थियरीज कॉन्सेप्ट्स है ना, पर्सपेक्टिव्स, ये फॉर्मूला है, इनको समझना बहुत जरूरी है, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग का बैकग्राउंड सेट करती है। और तीसरा जो है वो है अप्लाइड पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ दीज थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। तो अब मैं आप एक बार तो सिलेबस देख लिए, अब मैं आपको दोबारा अगर उन सिलेबस की तरफ ले जाता हूं तो आप यहां पे कॉम्प्रिहेंसिवली क्या देखिएगा कि अगर ये हिस्टोरिकल पार्ट कर रहा है और उसके बाद जो थियोरेटिकल स्टैंड है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशल थिंकर और स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर, ये अगर आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल थियरी जो मैंने आपको बताया था, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ द सिलेबस आप डिवाइड करके समझ सकते हैं। तो अप्रोच में क्या रखिए कि इनको जो भी कॉन्सेप्चुअल और थियोरेटिकल पार्ट है उसको बहुत अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उसकी बिल्ड करनी है, ताकि उसके आगे का जो टॉपिक है, अब चाहे वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है या उसके बाद का टॉपिक देख लीजिए, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ किनशिप और सोशल चेंज, ये सारा अप्लाइड पार्ट है। इनमें उन कॉन्सेप्ट्स की, उन थियरीज का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप पेपर 2 जब देखते हो तो अगर आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझ जाते हो, उसके बाद कास्ट का कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, उससे रिलेटेड थियरी समझ जाते हो, विलेज क्या है वो समझ जाते हो, है ना, ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, उससे रिलेटेड थियरी समझ जाते हो, सोशल क्लास का कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, सिस्टम ऑफ किनशिप का कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, तो आप देखते हो उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन है। उसके बाद जो पार्ट सी है पूरा अप्लाइड है। तो अप्रोच वही है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को समझिए, है ना, कि सब्जेक्ट का नेचर, इसमें क्या है, सब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या है और सब्जेक्ट का नेचर क्या है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थियरीज, कॉन्सेप्ट, पर्सपेक्टिव है उनको समझिए। अगर उनको बहुत अच्छे से समझ गए तो उसके बाद अप्लाइड पार्ट में अप्लाई करके टॉपिक सेंट्रिक प्रिपरेशन करिए, और आपका इन जनरल बता रहा हूं प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा एक बार जब कंटेंट डेवलप हो गया तो आप उसको मल्टीपल रिवीजन करिए, इसीलिए बोल रहा हूं डेली, वीकली, मंथली रिवीजन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कॉम्प्रिहेंसिवली आप प्रिपेयर करिए। बहुत सारे लोग जो सेल्फ करना चाहें वो सेल्फ करना चाहते हैं, जो भी मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं तो इसी प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हुए आपके लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल प्रिपेयर करवाऊंगा। मैं एक बार फिर अनाउंस करना चाहता हूं दैट 18 जुलाई को हम ये लेक्चर लेके आ रहे हैं। सोशियोलॉजी का हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। अराउंड 6 to 7 मंथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जिसमें आपको आंसर राइटिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, है ना, कंटेंट डेवलपमेंट, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, डाउट क्लियरेंस, सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड होगा, राइट। तो दिस बैच इज स्टार्टेड ऑन 18 जुलाई। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे हम प्रतिज्ञा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका डिस्काउंटेड प्राइस है 8499। या तो आप PWOnlyIAS के वेबसाइट पे जाके या ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट डेवलपमेंट भी होगा, आप एग्जाम को कैसे अप्रोच करें वो भी समझ सकते हैं, और आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, irrespective of your background, I guarantee you that I'll develop a comprehensive understanding of concept using which it will become quite easy for you to crack civil services examination, right? So that's all about my course. Once again, if you want to contact me or if you want to enroll my course, please contact PWOnlyIAS team, or go to pwonlyis.com and over there enroll my course. I was Shekhar, the faculty of sociology at PWOnlyIAS. I'll be signing off irrespective of you guys join or do not join my course.
I will wish you well for your preparation and examination. I want you guys to be dedicated and focused towards your preparation. ये एग्जाम याद रखिए कि आपको सीरियसनेस नहीं मांगता है, सिंसियरिटी मांगता है. मैं अपनी ओर से आप चाहूंगा कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट बन जाए और कंसिस्टेंसी अपने प्रिपरेशन में मेंटेन रखें. सेल्फ स्टडी करने से आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है. अगर आप क्लास में करते हैं तो वो चीजें थोड़ी ज्यादा आसान जरूर हो जाएंगी, बट फिर भी चॉइस आपका है. बट अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है और आप आराम से एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं, उसको सक्सेसफुली क्रैक भी कर पाएंगे. तो इस पॉजिटिव नोट पे आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो टुडे. Thank you. Have a nice day. Take care and God bless you all. Thank you and bye-bye.